एसके से प्रणाम। मन की बात 25 में आपका स्वागत है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मन की बात फॉर द ईयर 2024-25 and again when we come in the year 25-26 we will deliver you another 30 doses of Man Ki Baat. This year we could give you only 25 because we began the Man Ki Baat series little later during the year. आइए, today I am going to talk to you about a very interesting topic. The interesting topic is communication. The other day, Kandivali West में I had gone to see a resale flat. मेरे एजेंट ने बोला एक मस्त फ्लैट है, बहुत डनअप है, इट्स अ ट्रिप्ले मतलब एक होता है विला हाउस फ्लैट, एक होता है डुप्लेक्स फ्लैट जो 2 लेवल पर होता है, और ये ट्रिप्ले है एंड ये स्काई विला है, यानी कि एक टावर में सबसे ऊपर वाले मंजिल पर ये फ्लैट है। सो यू टोल्ड मी दैट इज फॉर सेल और आपका टेस्ट का है, जरा देख लो। When I went there, the lift opens up into the hall. अंदर जाते ही मैंने देखा, wow, what a grand entrance and a huge hall, a double-eyed hall. And by the time the broker, the agent with me, said Jai Shri Krishna to the lady there, and he asked in Gujarati, where is Bhai Sahab? She said he has just gone down for some work. He will be coming back in some time. At that time my broker said, ठीक है, हम कुछ देर बाद आते हैं, जब भाई साहब होंगे तब आएंगे। And we retrieved ourselves, went back to the lift, and we went down below the building. But when I went down, I was gasped at the quality of the interior, gasped at the type of the flat. Boy oh boy, एक एंटीना बनाया हुआ था वहाँ पर, and I was like asking my agent, who is this man? What is he into? He cannot be an ordinary man. He said he is into trading, and हम कुछ देर बाद आते हैं, by the time he comes हम आएंगे। And by the time we went down, we were driving back, opposite side से एक स्कूटर में एक आदमी आ रहा था, and उसके आगे एक गोनी रखी थी, and my broker, you know, he stopped the car, opened the window glass and started speaking in Gujarati, and he said in Gujarati, which I understood, you proceed, we are coming back. And he put the window panes back. I asked him, कौन है ये? He said, यही तो है उस फ्लैट का मालिक। Looking at him, एक छोटा सा आदमी, dark complexion, wavy hair, absolutely by any chance I cannot even tell that he could be the owner of that flat. ऐसा क्या है इसमें कि इसने इतना धन कमा लिया कि उसने इस टाइप का फ्लैट बनाया? After taking a round, I went there to his house, and that man showed me the flat around. By the time he talked to me for 3 or 4 minutes, I realized why is he sitting in that chair, why is he owning that flat, why is he having so much of wealth? Just because he knows how to talk, how to communicate. 3 minutes of talk was mesmerizing. He knew exactly what to talk and what not to talk. He knew exactly how to talk. जी हाँ, अगर अच्छी तरह बात करने पता होगा इफेक्टिवली, एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। महाराष्ट्र इज एन एग्जाम्पल। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ की टू योर सक्सेस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेस समिट में। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, गिव यू गाइडेंस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 10 टाइप के हैं, 10 टाइप के हैं, एंड आई एम गोइंग टू ब्रीफ टू यू ईच ऑफ दोस 10 टाइप्स वन आफ्टर द अदर। Before I start on communication, let me tell you, communication is an attitudinal skill. What is an attitudinal skill? आपको सक्सेस समिट में मालूम पड़ जाएगा। बट सक्सेस समिट जो है वो एक एटीट्यूडल स्किल है, एंड ये अगर हम शार्प टू अ हाई डिग्री हम शार्पनिंग करेंगे, इस स्किल को शार्प करेंगे अंडर साइंटिफिक गाइडेंस, तो हम इतनी ऊंचाई पहुंच जाएंगे बिकॉज द होल वर्ल्ड विल बी इन अ कंफर्ट जोन। हम किससे भी जाके बात कर सकते हैं।
You talk to the Prime Minister, you talk to a collector, you talk to a great government official or any philanthropic person or a great businessman. You can directly go, shake your hand confidently and speak if you are well trained in the skill of communication. आज हम आपको वो 10 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपको वन बाय वन बताने वाले हैं. अगर आप ध्यान से सुनेंगे then आपके अंदर ईगर वांट होगा to not only to know but to master those 10 forms of communication. This theory of the forms of communication comes from this book which says the quick and easy way for effective speeches. This is by Dale Carnegie, my guru. ये book अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इसमें से आपको पूरा थियरी मिल जाएगा. इसके अलावा there are other books also which I have referred and made this compact talk, compact मन की बात on communication. जो आदमी कम्युनिकेट करना जानता है वही दुनिया को राज करेगा. जो आदमी कम्युनिकेट करना जानता है वही आदमी लीडर बनेगा. वही आदमी कल उसके हाथ में. इट इज नॉट गोइंग टू बी द डिग्रीज दैट यू होल्ड. इट इज नॉट गोइंग टू बी द पर्सनालिटी दैट यू हैव. इट इज नॉट गोइंग टू बी द लुक्स दैट यू हैव. इट इज ओनली गोइंग टू बी द कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्निक्स दैट यू हैव मास्टर्ड. अगर ये आपने मास्टर किया है पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है. So I'm going to share the different signs of communication, the different types of communication to meet the desired outcome. जब भी हम मुंह खोलते हैं that time उसके पीछे एक purpose होता है. तो we say communication is of 10 types, 10 forms of communication to meet the desired outcome. Right? तो desired outcome मिलने के लिए और 10 form of communication क्या है ये one by हम लेंगे. Let's come to the first form of communication. सबसे पहला हम क्यों communicate करते हैं. पहला type number 1 is called as talk to inform. Talk to inform. जब भी हमको किसी पर्सनालिटी को इंफॉर्मेशन देना है, किसी बात का इंफॉर्मेशन देना है. सपोज मेरे काउंटर में आया है और मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ और उसको मेरे डिग्री कॉलेज में एडमिशन चाहिए. So I have to give him information about the degree college, about the courses that we have, about the admission criteria, about the fee. तो जब भी मैं ये सब पॉइंट्स बताता हूँ, it is called as talk to inform. कोई मुझे पूछता है आप यूएस जाके आए हैं, आप न्यूयॉर्क जाके आए हैं या कश्मीर जाके आए हैं, कश्मीर के बारे में कुछ बताओ. And I'm going to talk to that person, tell that person कश्मीर के बारे में, which are the 5 different places that you must visit, you should not miss, which are the 5 places that you must eat at, where you must stay, कितना खर्चा करना चाहिए, how you must travel. इसको हम बोलते हैं talk to inform. किसी ने बोला आपने जो खाना बनाया है या पर्टिकुलर वड़ा बनाया है या सांभर बनाया है वो बड़ा टेस्टी है और मैं वो रेसिपी शेयर करता हूँ किस तरह से वो खाना बनना है. इतना ग्राम ये लेना, इतना ग्राम पानी लेना, इतना लीटर ये लेना एंड देन आई से किस तरह बनाना है, कितना टाइम उबालना है, कितना मसाला ऐड करना है एंड देन इस तरह से ये बनता है. दैट इज अगेन और टॉक टू इन्फॉर्म. टॉक टू इन्फॉर्म अलग अलग चीज इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है. इट इज ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस स्पीकर्स. सो डेल कार्नेगी का जो बुक है इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है ऑन इंट्रोड्यूसिंग स्पीकर्स. इट इज कॉल्ड एज द TIS फॉर्मूला, TIS. जब भी कोई स्पीकर, जब भी कोई चीफ गेस्ट, जब भी कोई गेस्ट स्टेज में बात करने वाला होता है, अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, अगर मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी हूँ, अगर मैं MC हूँ तो मेरे बारे में मेरे पास जिम्मा होता है उसको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करना है. Like when I come on stage, मार्गरेट मिस या अर्शिया मिस मुझे इंट्रोड्यूस करती हैं. जब मुझे इंट्रोड्यूस करती हैं वो एक जिम्मेदारी होती है उनके शोल्डर पर किस तरह मुझे इंट्रोड्यूस किया जाए. तो ये इंट्रोडक्शन भी टॉक टू इन्फॉर्म में ही आता है. इसका करने का एक तरीका होता है, सही तरीका होता है. इसको बोलते हैं TIS फॉर्मूला, द TIS फॉर्मूला, जब आपको कवर करेंगे इन द कोर्स. तो talk to inform is anything that you talk, whenever you open the mouth to inform something to somebody, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे किसी भी ट्रैवल प्लान हो, चाहे आप एडमिशन काउंसिल के बारे में बात कर रहे हो या चाहे आप एनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप जब भी इंफॉर्म कर रहे हो, चाहे गेस्ट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इट इज कॉल्ड एज टॉक टू इन्फॉर्म. और ये है पहला रीजन. द डिजायर्ड आउटकम इज आपका जो ऑडियंस सुन रहा है should shake their head and say yes, now I know it all.
मुझे पता चल गया रेसिपी क्या है, मुझे पता चल गया गेस्ट कौन है, मुझे पता चल गया कि ट्रैवल कश्मीर कैसे जाना है। इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज टॉक टू इन्फॉर्म। Type 2, second reason why you talk is called as talk to entertain. आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस खड़े होकर आपको हंसाते हैं। जब भी आपका पर्पस होता है मुंह खोलने का कि अब मैं बात करूंगा और मेरे ऑडियंस या मेरे सामने वाला जो भी है उसको मुझे हंसाना है, तो आपका पर्पस होना चाहिए टॉक टू एंटरटेन। मैंने क्या बताया आपको? 10 फॉर्म्स टू मीट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, टू बीट द डिजायर्ड आउटकम। तो यहां पर डिजायर्ड आउटकम जो है कि मुझे हंसाना है लोगों को, राइट? वो हंसाने के लिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टाइप पर बोलना है, किस तरह जोक शेयर करना है, चुटकुला शेयर करना है या वन लाइनर मैसेज मारना है। दैट मीन्स आई एम वेरी क्लियर कि मेरा पर्पस जो है अब इंफॉर्मेशन देना नहीं है, अब मेरा पर्पस जो है वो टाइप 2 है, वो है मुझे एंटरटेन करना है लोगों को, मुझे लोगों को हंसाना है, मुझे लोगों को आई हैव टू कीप देम बिजी विद एंटरटेनमेंट। एंड वो चाहे मैं चुटकुला करो, स्टैंड अप कॉमेडी करूं या बाय एनी वे, व्हेनेवर आई ओपन द माउथ टू मेक पीपल लाफ, इट इज कॉल्ड एज टॉक टू एंटरटेन। अब आते हैं तीसरा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, द थर्ड रीजन व्हाई यू मस्ट कम्युनिकेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज टॉक टू गिव एक्सप्रेशन टू योर एक्सपीरियंस। I repeat, talk to give expression to your experience. In a suppose आप you passed your experience, आप कहीं पर खड़े थे और आपका एक्सीडेंट होने वाला था, या आप कहीं पर गए थे और वहां का एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया रहा। एक्सीडेंट बोलते हैं बढ़िया नहीं है, और जब कुछ अवार्ड आपको मिल गया बढ़िया रहा, तो यू हैव अ फीलिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस, यू हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस, और जब वापस आते हो आप घर में या ऑडियंस के सामने वही एक्सपीरियंस को आपको दोहराना पड़ेगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ था? अरे मालूम है, मैं रोड के किनारे खड़ा था और वहां से एक गाड़ी झूमती हुई आई, एंड आई वाज वाचिंग एट द कार इन वन आई एंड आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड। बाय द टाइम गाड़ी मेरे पास आई, एंड द वे यू टॉक, इट इज सामने वाला जो सुनने वाला है उसको लगना चाहिए कि उस टाइम पर उस जगह पर वो भी था। इस तरह से अगर आप अपने एक्सप्रेस करेंगे तो पीपल वही फील करेंगे जो आप फील करते हो। अगर आप माउंट अब्बू या माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए तो वहां ठंडी है, और चढ़ते वक्त जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, अगर वही एक्सपीरियंस आप इस तरह से पेश करते हो कि ऑडियंस में जो सुनने वाले लोग हैं, 1, 2, 50, 500, 5000 लोग हैं, उन सबको ऐसा लगना चाहिए कि यस, I was a part of that expedition. I was a part of that tour to Mount Abu or to Mount Everest. मैं वहां पर था, ऐसे सुनकर लगना चाहिए। यानी you give expression to your experience. ये हुआ टाइप नंबर 3। टॉक नंबर 4, चौथा रीजन टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड एज टॉक टू शो अ स्टोरी। माइंड यू, मैंने नहीं बोला टॉक टू टेल अ स्टोरी। देखो क्या है, टॉक टू शो अ स्टोरी। आप कोई भी कहानी किसी के बारे में, ट्रू स्टोरी, फॉल्स स्टोरी, नॉन फिक्शन स्टोरी, किसी भी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, किसी की कहानी, आपकी कहानी, कोई भी कहानी आप किसी को शेयर करते हो तो उसको बोलते हैं टॉक टू शो अ स्टोरी। आप किसी के लाइफ के बारे में, किसी के कोई भी कहानी जब आप सामने पेश करते हो, सामने वाले को उस कहानी का हिस्सा बनाना है। सुनते हुए लगना चाहिए या आई एम अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, मैं इस स्टोरी का हिस्सा हूं। आपने देखा होगा एवरी 10 years कोई भी एक सुपरस्टार बनता। अमिताभ का टाइम था, वर्ल्ड अमिताभ बिकेम अ सुपरस्टार, कि उसके हर मूवी में ऑडियंस में बैठा हुआ हर आदमी को लगता था मैं हूं एंग्री यंग मैन। जब भी कोई शाहरुख खान का मूवी देखता था, आई वॉज दैट लवर बॉय, उन्होंने मेरी ही कहानी चल रही है। जब whenever you succeed in showing people कि I am a part of that story, तब you succeed in your communication। ये भी मास्टर करना एक आर्ट है, बार बार रिपीट करने से टेक्निक है। it is a science that can be taught। किस तरह कहानी शो करना है, इसके बारे में एक अलग बुक है, हाउ टू शो अ स्टोरी। तो वो जो है वो बुक अभी यहाँ पर आ रहा है, ये बुक देखिए। It is about mastering the art of showing a story। जब भी आप कहानी बोलते हो, बहुत लोग कहानी बोलते हैं, सुनने का दिल नहीं करता, लेकिन जब कहानी इस तरह बोली जाए कि हमें लग रहा है कि आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, मैं उसका हिस्सा हूं, मेरे आसपास ही कहानी चल रही है, देन द फोर्थ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आप मास्टरी हासिल कर चुके होते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉक
टू शो अ स्टोरी। ये हुआ 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं 5वां टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द 5th फॉर्म? 5वां टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पर आएंगे तो हम बोलते हैं उसको टॉक टू कन्विंस। टॉक टू कन्विंस। जब भी कोई आदमी मुझे पूछेगा कुछ भी सवाल, सपोज एडमिशन काउंटर में आया और मैंने एडमिशन के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद मुझे कन्विंस करना है कि उसको एडमिशन मेरे ही कॉलेज में क्यों लेना चाहिए। अब वो एडमिशन काउंटर में आया, मैं रिसेप्शन में खड़ा हूँ, मैंने टॉक टू इन्फॉर्म दे दिया, उसमें काम खत्म नहीं होता। वहाँ एक साइंटिफिक टॉक होता है, उसको बोलते हैं टॉक टू कन्विंस। ये खास करके सेल्स मार्केटिंग वालों को मास्टरी करना चाहिए। एक्चुअली दिन आउट डे इन डे आउट जब भी हम किससे बात करते हैं, हम कुछ ना कुछ बेचते हैं, अपना थॉट बेचते हैं, अपना आइडिया बेचते हैं। हमें जाना है पिकनिक, मेरे पिताजी को कन्विंस करना है। हमें जाना है शाम को बाहर, मेरी मम्मी को कन्विंस करना है। अब मम्मी कन्विंस होती नहीं है। अगर आप ये टेक्निक सीख जाएंगे, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू डिलीवर अ टॉक टू कन्विंस, तो कोई भी हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मा हो, चाहे बाहर वाला क्लाइंट हो, चाहे रिसेप्शन पर कोई स्टूडेंट आया हो, यू कैन कन्विंस देम अबाउट थिंकिंग द वे यू वांट टू थिंक। इसको हम बोलते हैं टॉक टू कन्विंस। तो अगर मेरे पास मुझे कुछ बेचना है, मेरे पास सपोज एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डर हूँ, कोई आता है मेरे पास और मुझे फ्लैट बेचना है, तो सबसे पहला मैं बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन दूंगा। टॉक टू इन्फॉर्म। मेरी बिल्डिंग यहाँ पर है, इतना बड़ा लैंड पार्सल है, इतने सारे एमिनिटीज है, इतना हाइट है, इसका व्यू ये है, इसके पास है मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, व्हाटएवर आप सब, मार्केट है, स्कूल है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप दीजिएगा। उसके बाद उसने फ्लैट तुम्हारे पास से क्यों लेना चाहिए, कहीं और जाके आसपास दूसरे एरिया में क्यों नहीं लेगा, तो आपको देना पड़ेगा टॉक टू कन्विंस। और वो साइंस ऑफ लर्निंग टॉक कैन बी लर्न, इट इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ टॉक टू कन्विंस। ये सिखाया जा सकता है, राइट? मैंने थ्रू NLP आई हैव ऑलमोस्ट ट्राइड टू मास्टर दिस टॉक टू कन्विंस। तो ये हुआ आपका 5वां फॉर्म, टॉक टू कन्विंस। और 5 बचे हैं, टोटल 10 टाइप्स है। आइए 6वां फॉर्म को देखते हैं। जो 6th फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम बोलते हैं टॉक टू गेट एक्शन। टॉक टू गेट एक्शन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ इज इट रेलेवेंट? सपोज कोई मेरे डेस्क में आता है एडमिशन लेने के लिए कि मुझे एडमिशन चाहिए एट SKC। मैंने पहला टॉक टू इन्फॉर्म उसको दे दिया, 2 मिनट का टॉक, जहां मैंने उसको कॉलेज का सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया, कोर्सेज का वे बता दिया, कॉलेज का वे बता दिया, फीचर्स बता दिया, सब कुछ टॉक टू इन्फॉर्म। उसके बाद मैं दूंगा टॉक टू कन्विंस कि उसने क्यों कॉलेज में ही मेरे ही एडमिशन लेना चाहिए। अब 2 खत्म होने के बाद वो ठीक है बोलकर मुंडी हिलाता है, कन्विंस हो जाता है, लेकिन चला जाता है, एडमिशन फॉर्म नहीं लेता, एडमिशन नहीं लेता, तो मेरा इफेक्टिव क्लोजर नहीं हुआ है। यहाँ जरूरत पड़ता है समथिंग कॉल्ड एज टॉक टू गेट एक्शन। मान लो मैं LIC एजेंट हूँ, मुझे LIC एक पॉलिसी बेचना है, मैं क्लाइंट के पास गया हूँ। सबसे पहला मैं दूंगा टॉक टू इन्फॉर्म, जहाँ पर मैं पॉलिसी के बारे में, LIC के बारे में, मेरे कंपनी के बारे में और सारा क्लेम रेशियो क्या होता है और क्यों आपने कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए, कौन सा पॉलिसी आपके लिए अच्छा है, ये मैंने डॉक्टर इन्फॉर्म दे दिया। फिर मैंने क्यों अपने LIC से लेना चाहिए और किसी और कंपनी से नहीं लेना चाहिए और क्यों मेरे से लेना चाहिए, ऐसा मैंने टॉक टू कन्विंस दे दिया और क्यों अभी लेना चाहिए बता दिया। अब सामने वाला पर्सन दोनों मिल टॉक टू इन्फॉर्म एंड टॉक टू कन्विंस लेने के बाद, सुनने के बाद इज कन्विंस्ड, हाँ मुझे पॉलिसी चाहिए, लेकिन वो चेक निकाल के देता नहीं है और पॉलिसी लेता नहीं है। क्या फायदा? मैं किसी भी पर्सन से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई वांट टू गो टू डिनर विद हर, मुझे उसका डिनर जाना है, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद दिस गुड पर्सनालिटी। अब मैं उसको टॉक टू कन्विंस करता हूँ, क्यों अभी हमें शाम में डिनर के लिए आपको मेरे साथ आना चाहिए। जब बात करता हूँ डिनर में क्यों आना चाहिए, शी इज कन्विंस्ड, यस मुझे डिनर जाना है, आपके साथ जाना है। लेकिन जब गाड़ी खड़ा करता हूँ रेस्टोरेंट के सामने, तो वो बोलती है नहीं मुझे घर पहुंचना है या मुझे टाइम खत्म हो गया है, अभी एक्शन नहीं हुआ है। यानी कि आई डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हर टू हैव डिनर विद मी। पहले केस में क्लाइंट आया मेरे पास, स्टूडेंट आया, एडमिशन मेरे यहाँ नहीं लिया, टॉक टू इन्फॉर्म, टॉक टू कन्विंस देने के बावजूद। वैसे ही LIC एजेंट जब मैं बन के गया तो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, टॉक टू कन्विंस दिया, लेकिन मेरा पॉलिसी खरीदा नहीं। वैसे ही जब मैं डिनर के लिए बुलाता हूँ वो पर्सन कन्विंस हो जाता है, लेकिन एक्चुअल डिनर पर आती नहीं है, आता नहीं है।
इन ऑल द 3 केसेस क्या हुआ है, टॉक टू इन्फॉर्म एंड टॉक टू कन्विंस सक्सेसफुल रहा है, लेकिन वहां मिसिंग है टॉक टू गेट एक्शन। अगर हम वो साइंस ऑफ लर्न हम सीख जाते हैं, वी लर्न द टॉक टू गेट एक्शन, और वो सही तरीके से देते हैं, तब सामने वाला या सामने वाली को से एक्शन मिलेगा। जब बच्चा आता है इंफॉर्मेशन मिलेगा, कॉलेज के बारे में नॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स आइडेंटिफाई भी करेगा, कन्विंस भी हो जाएगा, और चेक निकाल के या कैश निकाल के देकर एडमिशन भी लेगा। अगर मैं इफेक्टिव टॉक टू गेट एक्शन देता हूँ तो, अगर मैं एजेंट हूँ तो सामने वाला मेरे से पॉलिसी खरीदेगा और उसका चेक देगा मेरे को। अगर मैं किसी को डिनर पर बुलाता हूँ, एक्चुअली पर्सन गाड़ी से उतर के आएगा और डिनर के लिए मेरे साथ जाएगा। इसको हम बोलते हैं छठवां टॉक टू गेट एक्शन। ये सीखना बहुत ही रेलेवेंट है और लाइफ में बहुत काम आएगा। ये सब जब बताता हूँ मैं, देयर समथिंग कॉल्ड एज NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप ये समझ के लो जरा। नॉर्मली हर एक स्टेट का अपना एक भाषा होता है। महाराष्ट्र का मराठी भाषा है, उड़ीसा का उड़िया भाषा है, भारत में हिंदी चलती है, इंग्लैंड में इंग्लिश चलता है, फ्रांस में फ्रेंच चलता है। दिस इज अ भाषा दैट पीपल अंडरस्टैंड ऑफ दैट रीजन। सेकेंड जो है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर समझता है, हमें उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर में कोडिंग करना पड़ता है। तो जैसा कंप्यूटर का एक भाषा होता है, ह्यूमन बीइंग का एक भाषा होता है रीजनली, वैसे ही हमारा ब्रेन का एक भाषा होता है। ब्रेन को तमिल या मराठी या हिंदी समझ में नहीं आती, या आप कन्विंस करना है या किसी एक्शन चाहिए तो आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP यूज करना पड़ेगा। और वही टेक्निक है जब सामने वाला आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको जो बोला वो करेगा और आपको सेल भी देगा, कन्विंस भी हो जाएगा और एक्शन भी देगा। So it is very important to master the technique called as talk to get action. अभी हम आते हैं सातवां, ये पांचों और छठे के बीच में एक और एक टॉक है जिसको हमने सातवें में रखा है, उसको हम बोलते हैं टॉक टू नेगोशिएट। टू नेगोशिएट एंड टॉक टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। जब भी सपोज मैंने एडमिशन के बात किया, कन्विंस टॉक टू इन्फॉर्म दिया, टॉक टू कन्विंस दिया, लेकिन टॉक टू गेट एक्शन देने से पहले सामने वाले के पास ऑब्जेक्शंस होता है, सवाल होते हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं लेना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे बॉम्बे जाना है डिग्री कॉलेज में सीखने के लिए, क्योंकि मेरा दोस्त तो कॉलेज में है, क्योंकि उसके पास आपका फी ज्यादा है, क्योंकि या व्हाटएवर सम रीजन उसके पास होगा, एक ऑब्जेक्शन होगा। जब मैं LIC पॉलिसी बेचने जा रहा हूँ तो सामने वाला मुझे बोलता है मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बीवी से पूछना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अमाउंट मेरे बैंक में नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हर महीना मैं ले सकूँ। यानी उसने एक ऑब्जेक्शन डाला आपके सामने। मैं किसी भी पर्सन, जेंटलमैन या जेंटल लेडी को बोलता हूँ चलो मेरे साथ डिनर, और पर्सन कन्विंस हो जाता है कि डिनर आपके साथ करना है मुझे, लेकिन आज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा बोल रहे हैं घर पे जल्दी पहुंच जाना, या मेरे पास इवेंट है, या अभी 9 बज चुके मुझे 11 बजे घर पहुंचना है। यानी कि वो पर्सन ने एक ऑब्जेक्शन डाला। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, ये 7वां फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक। सही तरह से आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया तो आपका टॉक टू गेट एक्शन आसान हो जाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप टॉक टू नेगोशिएट भी सीखते हो। नेगोशिएट यानी कि आप बिल्डर के बजाय तो फ्लैट लेने के लिए बिल्डर ने अमुक भाव बोला, आपके पास अमुक भाव है, आपको अमुक भाव में ही वो फ्लैट खरीदना है। बिल्डर ने सपोज पर स्क्वायर फीट आपको बोला 7,000 का भाव है, और आपको पता है एरिया में भाव 6,000 है, आप 5,800 में लेना चाहते हैं, तो किस तरह से आप नेगोशिएट करोगे? ये एक आर्ट है, और ये 7वें फॉर्म में आप सीखोगे। आपको अपने टर्म्स में किस तरह से एक चीज खरीद सकते हो, या अपने टर्म में किस तरह एक चीज बेच सकते हो। राइट? आप मेरे पास आओगे, मुझे कोर्स बेचना है और मेरा कोर्स का वैल्यू है 29,000 रुपीज, और बच्चे आते हैं अलग अलग से भाजी खरीदते हैं, तो पूछते हैं मुझे कंसेशन चाहिए या मुझे डिस्काउंट चाहिए। तो एक आर्ट है हाउ टू सेल विदाउट रिबेटिंग। मैं रिबेट नहीं दूंगा, मेरे दाम में बेचूंगा और तुझे बेचूंगा एंड तू यहीं पर लेगा। ये आर्ट को हम बोलते हैं टॉक टू नेगोशिएट और हैंडल ऑब्जेक्शंस। आपके सारे ऑब्जेक्शंस को मैं जब ठीक तरह हैंडल कर लूंगा तो आप कन्विंस तो थे ही थे, बट ऑब्जेक्शन में हैंडल कर लिया। अब मेरा टॉक टू एक्शन देते ही आपके पॉकेट से चेक निकल जाएगा और आप मेरा चीज खरीदेंगे, चाहे LIC पॉलिसी हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे फ्लैट हो, या बिल्डर के पास फ्लैट लेने जाते हो तो भी आप
कन्विंस कर पाओगे एंड एक्शन मिलेगा। या किसी के पर्सन को डिनर पर या कहीं पर आपको सपोज मुझे किसी को बोलना है चल मेरे साथ लोनावला घूमने जाना है, और वो पर्सन को मैं इन्फॉर्मेशन दिया लोनावला के बारे में, मेरे बारे में, फिर मैंने टॉक टू कन्विंस दे दिया कि लोनावला कितना बढ़िया है बारिश के सीजन में, एंड उसके बाद उसने ऑब्जेक्शन डाला क्यों ओवरनाइट, या फिर क्यों 2 दिन के लिए, या क्यों इतना लंबा टूर में नहीं आ सकता है वो या नहीं आ सकती है। अब मैंने ऑब्जेक्शन सही तरह से हैंडल कर लिया एंड टॉक टू एक्शन दे दिया, वो पर्सन फटक से गाड़ी में बैठ जाएगा या बैठ जाएगी और मेरे साथ लोनावला चल देगा। तो दिस इज एन आर्ट, इज अ साइंस व्हाट यू विल लर्न, और इसको मास्टर करोगे पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ये है 7वां फॉर्म, उसको हम बोलते हैं टॉक टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, टॉक टू नेगोशिएट। अपने भाव में एक चीज को लेना या बेचना, अपने टर्म में सामने वाले को कन्विंस करना एंड एक्शन मिल जाना, चेक मिल जाना, एडमिशन मिल जाना। और ये जब मास्टर करोगे, बिलीव मी, यू विल बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अ सक्सेसफुल पर्सन। इसीलिए तो चाय वाला प्रधानमंत्री बैठ के बैठा है, उसको पूरे नेशन को कन्विंस करने आता है। इसीलिए ऑटो ड्राइवर चीफ मिनिस्टर बन सका, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उसको आता है हाउ टू गेट एक्शन। यानी कि लोगों को सिर्फ उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बट लोग गए बूथ में जाकर उन्हीं को वोट दिया। और ये आर्ट, एक्शन मिलने का आर्ट जो है एक कम्युनिकेशन पर है, एंड दैट कम्युनिकेशन हमें सीखना है। उस कोर्स में सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, किस तरह आप मास्टर कर सकते हो, एंड ये हुआ 7वां फॉर्म। अब बचे 3 और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको और हम 1 by 1 बताएंगे। Here we go to the 8th form of communication. The 8th type of communication is impromptu talks or small talk. जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी ग्रुप फ्रेंड सर्कल में जाते हैं या किसी ने किसी इंट्रोड्यूस किया या किसी सेमिनार में जाते हैं, 2-4 लोगों को मिलते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, गेस्ट हो या कोई भी हो, वहां पर अलग अलग बातें निकलती है। कोई क्रिकेट के बारे में बात करता है, तो कोई शेयर मार्केट का बात निकलता है, तो कोई फिल्म इंडस्ट्री का बात करता है। अगर लास्ट वीडियो में क्या बैठा था और बात निकली सलमान खान पर और सिकंदर मूवी पर, तो इम्प्रॉम्प्टू, कोई प्रिपरेशन तो है नहीं, वहीं पर सडनली टॉक चालू हो गया। हाउ कैन आई गेट इनटू दैट टॉक एंड स्टिल मेक अ मार्क? यानी वहां के ऑडियंस के पास पता चलना चाहिए, ओ माय गॉड, ही नोस अबाउट इट। बहुत बार ऐसे होते हैं, लोग बातें करते हैं और हम सोचने पड़ते हैं कि क्या बात करूं, ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं है। अगर आपने ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मास्टर कर लिया, किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पर आप तुरंत अंदर से किसी भी स्मॉल टॉक पर घुस सकते हो और आप बढ़िया टॉक में भाग ले सकते हो। इसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स। जगह पर टॉक में हासिल कर, चाहे क्रिकेट की दुनिया पर हो, चाहे शेयर मार्केट पर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मनी मार्केट हो, कोई भी टॉपिक, चाहे कुकिंग के बारे में हो, इमीडिएटली आप किसी ना किसी तरह घुस जाओगे और उस टॉक में आप भाग लोगे, क्योंकि आपने मास्टर कर चुके हैं 8वां फॉर्म, that is talk to participate in impromptu talks, talk to give small talks। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप स्मॉल टॉक मास्टर करेंगे तब लोग आप पर, you can put a lasting impression on people. You people will say, oh my God, he knows so much। 9th form is a very interesting form, a very nice type of communication. It is called as fantasizing or dramatization। जब भी आप हम तकिए में हम सर नीचे डालकर हम कुछ फैंटेसाइज करते हैं, वी फैंटेसाइज और समथिंग, हम नॉर्मली लोगों को पूछते हैं ना तुम्हारी फैंटेसी क्या है। सो व्हेनेवर वी फैंटेसाइज समथिंग, काल्पनिक हम कुछ बिल्ड करते हैं, कैसल्स इन द एयर बिल्ड करते हैं। ये पूरी फिक्शनल बात होती है, होने वाली बात, फिक्शन, सपना। सो वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड, वी फैंटेसाइज, और वो फैंटेसी को हम किसी के सामने पेश करते हैं इस तरह से कि वो पर्सन भी उस फैंटेसी का भाग हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फैंटेसाइज कर रहा हूँ, अब यहाँ पर गर्मी काफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मैंने किसी को फैंटेसी कर लिया कि मैं कश्मीर में हूँ और मुझे ठंडी लग रही है और मैं आइस क्लैड माउंटेन के ऊपर हूँ, मैंने ठंडी वाला कपड़ा पहन रखा है, फिर भी मुझे बहुत ठंडी लग रही है, और वो फैंटेसी को मैं इस तरह शेयर करता हूँ, और मैं और पर्सन मेरे साथ में है, हम दोनों वहां जा रहे हैं, और इस तरह से मैं बोलता हूँ कि मुझे ठंडी लगी रही है, वो पर्सन भी तब तक कांपने लगता है, उसे भी एक्सपीरियंस होता है कि मुझे भी ठंडी लग रही है। तो उस फैंटेसी में आपने उस पर्सन को भाग बना लिया। इट कैन ये पर्सन दुनिया को राज कर सकता है, क्योंकि उसने अपने काल्पनिक दुनिया में सामने वाले को इन्वॉल्व करने में सक्सेसफुल रहा। एंड ड्रामेटाइजेशन इज अपने आइडिया को ड्रामेटिक तरीके सामने पेश करना। फॉर एग्जाम्पल,
कोई अगर आप किसी को बता रहे हो कि आप आर्मी जनरल हो या आप एक फ्रंटियर पर आप एक सैनिक का ग्रुप को लीड कर रहे हो, तो क्या आप बोलोगे जवानों आओ पाकिस्तान की सेना सामने है, चलो आक्रमण करते हैं। आपको लग रहा है सैनिक वाले आएंगे? और आपको खून बॉयल करवाना है, ड्रामेटाइज करना है, तो आप बोलोगे जवानों आक्रमण। इस तरह अपने आप को पेश करोगे। जी हाँ, जिस तरह से आप ड्रामेटाइज कर पाओगे। सपोज आपको एक्टिंग करनी है, एक बच्चा है जिसका जान जा रहा है, आप उसके पेरेंट हो, मदर हो, और आपको खाना देने के लिए नहीं है, आपके पकड़े पैसा नहीं है, और बच्चे की जान जा रही है भूख के मारे, तो किस तरह से आप उस आइडिया को ड्रामेटाइज करके पेश करोगे स्टेज में? इसको बोले ड्रामेटाइजेशन। सपोज मैंने टॉपिक दे दिया कि आप बीच पे हो, आपने सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है और सडनली क्रैब यानी खेकड़ा आपके पैंट में घुस जाता है। ये टॉपिक है, फैंटासाइज करना है, असली में नहीं घुसा है, लेकिन स्टेज में खड़ा है और मैंने बता दिया आपको कि आपके पैंट में खेकड़ा चला गया है। अब आपको एक्टिंग करके दिखाना है कि खेकड़ा मेरे पैंट में है, तो किस तरह से आप एक्टिंग करोगे, किस तरह बॉडी मूवमेंट करोगे? सामने लगना चाहिए असली में इसके पैंट में खेकड़ा गया है, वो कर दिखाना। ये पॉसिबिलिटी को बोलते हैं टॉक टू ड्रामेटाइज, टॉक टू फैंटासाइज। सपोज मैंने बता दिया आप लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट में 2 फ्लोर के बीच में अटक गई, लाइट चली गई, और लिफ्ट में आपके पीछे जो पर्सन खड़ा है वो कोई कोशिश कर रहा है आप पर आक्रमण करने का या आपको हाथ लगाने का अलग तरीके से, और आपको एक्टिंग करके दिखाना है कि आपको बचना है उस पर्सन से। तो जिस तरह से आप बचोगे और ड्रामेटाइजेशन आप पेश करोगे, सामने वाला देख कर लगे सचमुच इसके पर्सन लिफ्ट में ही खड़ा है और कोई इसके पीछे है और इसे कोई कोशिश कुछ कर रहा है, वो जिस तरह करके दिखाओगे उसको हम बोलते हैं ड्रामेटाइजेशन या फैंटासाइजेशन। काल्पनिक तरीके से करके दिखाना, बॉडी मूवमेंट करके दिखाना, इसको हम नौवा टाइप बोलते हैं, ड्रामेटाइजेशन या फैंटासाइजेशन। आखिरी टाइप, 10वां टाइप, the 10th type of communication is called as talk to inquire. Talk to inquire. आप देखे होंगे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में they have become millionaires, billionaires, बहुत पैसा कमा चुके हैं पॉडकास्ट में। क्या करते हैं? एक बहुत अच्छे गेस्ट को बुलाते हैं, सामने बिठाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, और सवाल का टाइप होता है ओपन क्लोज क्लोज। अगर मैंने एक सवाल ऐसा पूछा जिसका उत्तर हाँ या ना है, सिर्फ हाँ या ना, तो मेरा सवाल सही नहीं रहा। मुझे सही तरह से प्रिपरेशन करना है, इस तरह सवाल पूछना है कि सामने वाला, मैंने 1 मिनट का सवाल पूछा तो सामने वाला 5 मिनट का आंसर देता है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द पॉडकास्ट इंडस्ट्री जिन्होंने यंग एज में बहुत कुछ कमा लिया, नाम भी कमा लिया, और आजकल आपने सुना है नाम गवा भी दिया है। बट ये लोग ने इतना पैसा कैसे कमाया? तो इन्होंने मास्टर किया 10 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टॉक टू इंक्वायर। किसी गेस्ट को बुलाया, उसके बारे में कौन सा सवाल पूछना है, कैसे पूछना है, और किस तरह उस सामने केस स्टडी देना है, सिचुएशन देना है। ऐसा होता तो आप क्या करते? बहुत पहले टीवी में अभी तक चल रहा है वो आपकी अदालत, आपने देखा होगा। आपकी अदालत अच्छे लोगों को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बुला करके वो पर्सन वहां पर अलग अलग सवाल पूछता है, और पर्सन का उस पर्सन से बुलाया है उसका सारा पर्सोना बाहर निकल के आता है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। तो किस तरह से आप टॉक दोगे कि आप सही इंक्वायरी कर पाओगे, तो आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री में बहुत कुछ कमा सकते हो। इसका बहुत सारा होमवर्क लगता है, ये पूछने का तरीका होता है, राइट? वो किस तरह पूछा जाएगा या किस तरह से हमें सवाल पूछना है, किस गेस्ट को कौन सा सवाल पूछना है, कैसे पूछना है, ये आता है 10th फॉर्म, टॉक टू इंक्वायर। ये कहीं भी काम में आता है। किसी ने मुझे बुलाया, मुझे किसी पर्सन के साथ मुझे ट्रेन का जर्नी करना है, या मैं फ्लाइट में जर्नी कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे से दिल्ली जा रहा हूँ, 1 घंटा मेरे बाजू में ऐसा गेस्ट आया है, वो अलग फील्ड में से है, जो मेरे फील्ड में से नहीं है। अब मुझे जानना 1 घंटा तो हिल नहीं सकता, वो तो वहाँ पर बैठा ही है, क्योंकि वो फ्लाइट में उड़ी तो बाहर नहीं मार सकता, और नसीब मेरा है या उसका मेरे बाजू में आकर बैठ गया है। अब वो 1 घंटे में कौन सा टॉक टू इंक्वायर, कौन सवाल पूछूंगा ताकि वो पर्सन मुझे उससे पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा, राइट? ये मास्टरी होता है टॉक टू इंक्वायर। बहुत बार अच्छे लोग हमारे पास से गुजरते हैं,
कोई शेयर मार्केट में बिकम्स हीरो इन शेयर मार्केट, मेरे पास में है 1 घंटा, मेरे पास पूरा टाइम है, अब मैं किस तरह सवाल पूछकर पूरा बेनिफिट लूं उस 1 घंटा जर्नी का। लेकिन अगर मैंने टॉक टू इंक्वायर मास्टर ही नहीं किया है तो मैं बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। तो दीज आर द 10 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विच यू मस्ट मास्टर, विच यू मस्ट, और एक बार आपने मास्टरी कर लिया पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यू विल हैव द होल वर्ल्ड इन टू योर कंफर्ट जोन, किससे भी बात कर सकते हो, एंड सक्सेस विल बी ऑल योर्स। आइए 25वां 25th मन की बात, सबसे लंबा मन की बात सेलिब्रेट करते हैं विद अ केक, ऑनलाइन केक, एक डिजिटल केक कटिंग से सेलिब्रेट करते हैं। हियर वी गो। हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट, अपने आप को सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने 25 हफ्तों से मुझे सुना है, लगातार कंसिस्टेंटली सुना है। इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने गेन किया होगा। कोई सवाल आपको है, आप मुझे पूछ सकते हैं उन 25 किसी भी एपिसोड पर, ताकि मैं जो सुनते हैं मेहनत, गिव टाइम टू एंड एनर्जी टू लिसन, उनके साथ में हूँ। तो 25 हफ्ता भी हो चुका है, लगातार 25 हफ्ता, मोर देन 6 मंथ्स। आइए फिर से हम आने वाले टर्म में, जब टर्म चालू हो जाएगा जून में, फिर से मिलेंगे विद मन की बात 26, यानी मन की बात 26 अब 2 महीना गैप के बाद होगा, राइट? तो तब तक के लिए कॉमा या पॉज लगेगा। SKC प्रणाम, एंजॉय योर वेकेशन, सी यू बैक इन जून। थैंक यू।